السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے ناول کی طرف آتے ہیں۔ بارات کی تمام رسمیں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھیں اور اب فنکشن کے اختتام کے ساتھ رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ علیزہ کے سر پر عمر جبکہ افرا کے سر پر عاصم نے قرآن مجید کا سایہ کیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ قرآن مجید کے سائے میں رخصت ہو رہی تھیں۔ اپنے ماں باپ سے ملتے علیزہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، جبکہ آمنہ بیگم اور سردار صاحب بھی اپنا دل بڑا کرتے بھیگی آنکھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کر رہے تھے۔ علیزہ سے ملتے علی اور احمد بے تحاشا روئے۔ ان کی اپنی بہن سے محبت وہاں موجود تمام افراد کی آنکھیں نم کر گئی، جبکہ عاصم اور عمر بھی اپنا دل بڑا کرتے اپنی بہن سے ملے مگر روئے نہ تھے۔ وہ یہ کام ان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ سمجھدار تھے اور اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنا انہیں آتا تھا، مگر یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ ان کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی بھی ایک کانٹا نہ چبھنے دے۔ دوسری طرف رفیق صاحب اور سمرہ بیگم کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ اس کی بیٹی نے کبھی ان سے جدا نہ ہونا تھا، مگر آج وہ مکمل طور پر کسی اور کی ہو چکی تھی، جس کا حق اس پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ دونوں دلہنوں کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا اور اب وہ سب حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حویلی میں افرا اور علیزہ کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا، جبکہ انہیں لاؤنج میں بٹھائے کچھ خاندانی رسومات ادا کی گئی تھی۔ جبکہ علیزہ اور افرا دونوں ہی تھک چکی تھی۔ ان کی تھکن کو دیکھتے ہوئے بھی جان نے انہیں ان کے کمروں میں بھجوا دیا۔ مقدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اپنے کمرے میں سامنے پوری موجود ٹیم کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ ان میں سب سے آگے افرا کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹو، میرے کمرے کے آگے ناکا کیوں لگایا ہے؟ مقدم ان سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ آپ کو کمرے میں جانے کے لیے فیس ہے، ادا کرنی پڑے گی، ورنہ آپ نہیں جائیں گے۔ افرا مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کتنی؟ مقدم ان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد اپنی جان عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ 1,00,000۔ افرا نے اپنی ڈیمانڈ آگے رکھی تو مقدم نے بغیر بحث کیے اپنی جیب میں سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور افرا کے ہاتھ میں تھما دی۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ افرا خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ چلو اب پیچھے ہٹو، مقدم اسے پیچھے ہٹانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو سب وہاں سے ہٹ گئی۔ مقدم کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو اس کی نتھیوں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ مقدم نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے بالکل درمیان میں علیزہ اس کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، مقدم علیزہ کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی گمگیر آواز سن کر علیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام، علیزہ کی ہلکی سی آواز میں بولی، جبکہ چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ علیزہ جو مقدم سے بلا جھجک کوئی بھی بات کرتی تھی، اب اس کا دل کسی اور ہی رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ علیزہ کی ہلکی سی آواز سنتے مقدم مسکرایا اور تھوڑا اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے آگے تڑپ رہا ہوں اور تم یہ گھونگھٹ اپنے چہرے کے آگے کیے اپنے عاشق کو اور زیادہ تڑپا رہی ہو۔ مقدم اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے بولا۔ مقدم کا گھونگھٹ ہٹانے سے علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی جانب دیکھا، مگر اسے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ جب ایک کچھ دیر تو مقدم اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟
अलीज़ा मुकद्दम को मुसलसल खुद को देखता पाकर आखिर में पूछ ही बैठी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़कर इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। चलो उठो, नमाज अदा करते हैं। कज़ीम अलीज़ा का हाथ पकड़कर बेड से उठाते हुए बोला और इसे अपने साथ चेंजिंग रूम में ले आया। आहिस्ता से एक एक करके इसकी ज्वेलरी उतारी और इसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करके साइड पर रख दिया। चेंज करके आओ, नमाज अदा करनी है। मुकद्दम इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला और वहाँ से चला गया। सुबहान अल्लाह। जबकि मुकद्दम के जाने के बाद अलीज़ा मुस्कुराई और अपने चेंज करने के लिए कोई हल्का सा ड्रेस निकाला जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। अलीज़ा वज़ू करके बाहर निकली तो मुकद्दम चाय नमाज पर खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। अलीज़ा ने आगे बढ़कर अपनी जाय नमाज उठाई और मुकद्दम के ठीक पीछे बिछा दी और अब वो दोनों एक दूसरे के हमरा ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने के बाद इन दोनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और दुआ के लिए हाथ उठाए अपने अच्छे नसीब और बेहतरीन शख्स के लिए। अलीज़ा ने अपने रब से हज़ारों बार शुक्रिया अदा किया जबकि मुकद्दम ने अपने रब से शुक्र अदा करने के साथ साथ अलीज़ा का साथ दुनिया से लेकर जन्नत तक मांगा था। दुआ मांगकर मुकद्दम उठा और अलीज़ा को साथ लिए बेड की जानिब मुड़ा। वहाँ पर इसे बिठाया और इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। तुम्हें पता है आज मैं किस कदर खुश हूँ। मुकद्दम अलीज़ा की मेहंदी से सजे हुए हाथ लबों से लगाते हुए बोला तो अलीज़ा ने मुकद्दम की जानिब देखा। मुझे लग रहा है कि आज खुदा ने मुझे मुकम्मल कर दिया, मेरी रूह को मुकम्मल कर दिया, मेरी दुआओं को मुकम्मल कर दिया, मेरे नसीब को मुकम्मल कर दिया और मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। मेरी तुम्हारे लिए मोहब्बत बेतहाशा है, कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। मुकद्दम उठकर बैठते हुए बोला और साइड टेबल के दराज में से एक सुर्ख रंग की डिब्बी निकाली। डिब्बी में डायमंड रिंग निकालते हुए मुकद्दम ने अलीज़ा की जानिब बढ़ाया। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मुकद्दम की मजबूत हथेली में रख दिया जबकि मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए वो रिंग अलीज़ा के बाएं हाथ की उंगली में पहना दी। इसे कभी खुद से जुदा मत करना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है और मैं ये चाहता हूँ कि यह हमेशा तुम्हारे हाथ में ऐसी ही सजी रहे। मुकद्दम इसकी अंगूठी पर रब रखते हुए बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी है। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली तो मुकद्दम ने खींचकर इसे अपने हिसार में लिया। मगर तुमसे खूबसूरत नहीं। मुकद्दम इसके गाल पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला जबकि इसकी दाढ़ी की चुभन से अलीज़ा सिसकी थी। अलीज़ा की तरफ देखते मुकद्दम ने अपनी दाढ़ी ज़ोर से इसके गाल पर रगड़ी थी जबकि इसकी इस हरकत पर अलीज़ा ने मुकद्दम को घूर कर देखा। आप कितने जालिम हैं। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखती मुंह बनाते हुए बोली। तुमसे कम। मुकद्दम इसके दूसरे गाल पर रब रखते हुए बोला। मैंने आप पर कौन सा जुल्म किया है। अलीज़ा को तो सदमा ही लग गया। ये सुनकर इसने मुकद्दम पर जुल्म किया है। अपनी कातिल अदाएं दिखा दिखा कर बेगम आप मुझ पर जुल्म ही तो ढाती आई हैं। मुकद्दम बोलते बगैर अलीज़ा को कुछ भी बोलने का मौका दिए इसके लबों पर झुका जबकि इसके लम्स को महसूस करते अलीज़ा ने मजबूती से इसके कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब मुकद्दम पीछे न हटा तो अलीज़ा ने इसे कंधों से पीछे करने की कोशिश की मगर मुकद्दम इसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद करता इसे लिटाकर खुद इस पर हावी हुआ था जबकि अलीज़ा मुकम्मल बेबस हो चुकी थी। मुकद्दम इसके होठों को आज़ाद करता सर उठाकर अलीज़ा की तरफ देखने लगा जो गर्दन तक सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या मुझे इजाज़त है। मुकद्दम अलीज़ा के माथे पर लब रखते हुए बोला। इजाज़त तल नज़रों से अलीज़ा को देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने नज़रें
नज़रें उठाकर मुकद्दम की तरफ देखा, मगर इससे नज़रों का सामना ना करते हुए अपना चेहरा बेख्तियार मुकद्दम के सीने में छुपा लिया, जबकि अलीज़ा के इस तरह खूबसूरत अंदाज में इजाज़त देने पर मुकद्दम इसे मज़ीद हुस्न में भींचता हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर गया। जहाज़ेब अपने कमरे के सामने पहुंचा, मगर सामने मौजूद लड़कियों को देखकर रुक गया। अब क्या चाहती हैं भाई? जहाज़ेब इन सब की तरफ देखते हुए बोला। एंट्री फीस, इफ़रा की खाला की बेटी जहाज़ेब की जानिब देखते हुए बोली। लो, ये अब कौन सी नई फ़ीस देनी है? जहाज़ेब इन सबको मशकूक नज़रों से देखते हुए बोला। देखिए भाई, अगर आपको अपनी बीवी के पास जाना है तो हमें फ़ीस पे करें, वरना हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले। वो जहाज़ेब की तरफ देखती दरवाजे के साथ और चिपक कर खड़ी हो गई। कितनी चाहिए? जहाज़ेब को इनसे बहस करना बिल्कुल फजूल लगा। 1 लाख, वो एक अदा से बोली। शक्ल है तुम्हारी 1 लाख वाली? जहाज़ेब इसकी डिमांड सुनते हुए बोला। जी बिल्कुल, अब आप दें, वरना कहीं और रात गुजार लें। आप? वो भी अटल लहजे में बोली। तो जहाज़ेब ने सर्द आप भरते पैसे इन्हें दिए और वो वहाँ से लेती खुशी से उछलती वहाँ से चली गई, जबकि जहाज़ेब इन सब की स्पीड ही देखता रह गया। अपना सर झटकता जहाज़ेब कमरे में दाखिल हुआ तो इसका इस्तकबाल फूलों से सजे कमरे ने किया। जहाज़ेब दरवाज़ा बंद करता मुड़ा तो सामने बेड के बीचों बीच इफ़रा को बैठे देखकर मुस्कुराया और कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम मिसेस। जहाज़ेब की भारी और गंभीर आवाज़ सुनते इफ़रा खुद में सिमटी थी। वालेकुम अस्सलाम, इफ़रा नज़रें झुकाते हुए बोली। जहाज़ेब ने अपनी शेरवानी उतारी और इसे साइड पर रखा और इफ़रा के करीब बैठा। पहले तो जहाज़ेब इफ़रा को बगौर देखता रहा, फिर इसकी कलाई पकड़ते एक ही झटके से इसे करीब तर कर चुका था, जबकि जहाज़ेब की इस हरकत से इफ़रा का एकदम में बखलाई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस। जहाज़ेब इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो इफ़रा का दिल 200 की स्पीड से धड़का था। आप भी? इफ़रा कुछ बोलती, जहाज़ेब इसके लबों को अपनी कैद में कर चुका था, जबकि इफ़रा आंखें फैलाए जहाज़ेब को देखने लगी, जो शिद्दत से अपना लम्स इसके लबों पर छोड़ रहा था। इफ़रा इसके सीने पर दोनों हाथ रखे इसे पीछे करने की कोशिश करती तो जहाज़ेब ने इसके हाथों को अपनी कैद में ले लिया। जहाज़ेब कुछ देर इसके लबों का जाम पीते पीछे हटा, जबकि इफ़रा लंबे लंबे सांस लेती इसके कंधे से सर टिका गई थी। मुझे आज अंदाज़ा हो चुका है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो अपने महरम से हो, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। जहाज़ेब इसकी ज्वेलरी इसके वजूद से अलग करते हुए बोला। तुम दोगी मुझे अपनी मोहब्बत, जिसमें कोई और ना हो, सिर्फ तुम और मैं? जहाज़ेब अपनी जेब में से एक गुलाबी रंग की डिब्बी निकालते हुए बोला और सवालिया नज़रों से इफ़रा की जानिब देखा। मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ आप ही हैं और मैं किसी को इसमें शरीक करने का सोच भी नहीं सकती। इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखती यकीन दिलाते हुए अंदाज में बोली। मुझे तुम पर यकीन है। जहाज़ेब मुस्कुराकर बोला और डिब्बी से चेन निकाली और वो खूबसूरत चेन बहुत हक से इफ़रा के गले में पहना दी। बहुत प्यारी है। इफ़रा अपने गले में मौजूद इस खूबसूरत चेन को देखते हुए बोली। तुम्हें तो तुम्हारी मुंह दिखाई मिल गई, अब मुझे क्या मिलेगा? जहाज़ेब मायनी अल्फाज में बोलता इफ़रा की धड़कनें मुश्तरका कर गया। आपको क्या चाहिए? इफ़रा हिकलाते हुए बोली। सिर्फ तुम। जहाज़ेब बोलता इसे खुद में बीच गया, जबकि इफ़रा भी पूरे दिल से अपना आप अपने शोहर को सौंप चुकी थी। इन चारों की दुआओं पर आज कुन फरमा दिया गया था। आज इन चारों का सफ़रे कुन में तब्दील हो चुका था। बेशक हमारा खुदा हमारे हक़ में कभी गलत नहीं करता, वो हमें बेहतरीन से नवाजता है। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔